I am very pleased to know that Indu Bhen of Leicester Center has organized a special program of honoring above 80 years Pakka Brahmins. Baba says that presently all are Vanprasthi because everyone has to now go to Paramdham, but above 80 are real Vanprasthis. They can feel that they are Vanprasthis, and it is high time to honor them for their leading a Pakka Brahman life for so long and contributing to the vibrations of purity all over the world. Baba says that achanak, sudden, that we have to remember the word sudden, which means that our Sangam life can end any time. And for that, Baba says we have to be ever ready because we do not know when that sudden moment comes and our this diamond life of confluence ends. So we have not only to remember sudden but have to be ever ready for that. And then Baba says this stage has to be for long period because it cannot suddenly come. That when the time comes, at that time we will be able to concentrate and we will be able to be ever ready. So therefore, my advice to all these respected and respectable elderly souls is that while they are being honored, it is very nice, they deserve it, they should always think of sudden and ever ready. And we have to, for this, we have to practice what Baba says, angelic stage. Because Baba says the last words of Brahma Baba before leaving the body were Nirakar and Akar and Sakar. So three stages we have to be in, and in Sakar stage, in the corporeal stage, we have to be entirely like a word server, humble and without any type of trace even of subtle ego. And when we have that, then we will be able to remain in our angelic stage, which of course is bodiless. In angelic state, you naturally become bodiless, and therefore you are free from all types of vices and their traces. So, my good wishes and my congratulations to this group of about 50 elderly people, and I join you on this auspicious occasion for greeting you and congratulating you. Om Shanti. सबसे पहले एक एक हमारे, मैं तो कहूँगी कि हम ये नहीं कहते 80 ईयर, हाँ 80 ईयर प्लस, परंतु हम ये कहेंगे कि 8 ईयर, ठीक है ना, क्योंकि बाबा हर रोज़ मुरली में कहते हैं बच्चे बच्चे बच्चे, आप सब बच्चे हो ना, बच्चे हो ना, तो बच गए ना। तो आप सभी ने तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सब सेवा करके अनुभव का आपने पूरा अपने में माइन इकट्ठा किया है, खानियाँ इकट्ठी की है, ठीक है ना। तो आपको देख करके आप वरदानी मूर्त हो, सब एक एक वरदानी मूर्त हो। आपकी दृष्टि से, आपके प्रेजेंस से हमारे जो आज के नौजवान नेक्स्ट जनरेशन जो आते हैं वो आपको देख करके ही बाबा के बन जाते हैं। आपसे वो भासना आती है क्योंकि आपके अंदर कुट कुट के क्या भरा है, बाबा का ज्ञान, बाबा की शक्ति, बाबा की सब अनुभूतियाँ जो आपने भरी है, वो उसके वाइब्रेशंस आप फैलाते रहते। ऐसे है ना, जहाँ पर भी है, हाँ कोई रोता तो नहीं है ना, जैसे बात बताया सुकंती बेने हंसते हैं, सब हंसते हैं ना, खुश है ना,
हाँ, तो आपसे सबको ये वाइब्रेशंस मिले, कहाँ पर भी हो आप, आपका प्रेजेंस ही सेवा करता रहे। और आप देखो इतने भाग्यवान है कि हमारे दादी जान की एग्जाम्पल है हमारे लिए, ठीक है ना। हम सब दादी को फॉलो कर रहे हैं ना, आप सब दादी को फॉलो कर रहे हैं ना। दादी हमेशा कहती है मैं कभी भी टायर्ड नहीं होती, तो मुझे रिटायर होने की ज़रूरत नहीं। आप में से कोई है रिटायर यहाँ पर? कोई है रिटायर? रिटायर है क्या? आप रिटायर्ड हो क्या? आपको कोई है जो आपको खाना दे प्लेट में? हाँ, आप तो सब बाबा के बच्चे ऐसे हैं, हाँ, जैसे हमेशा चलते फिरते जैसे एक फरिश्तों के समान है। तो आपका जीवन ही हम सब के लिए एक एग्जाम्पल है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आपका ये जो अभी ऑनरिंग हो रहा है, हमारे इंदू बहन, सुकंती बहन, दीपिका बहन, बाबू भाई, भूपेन भाई, सब जो भी हमारे लेस्टर के पूरे परिवार है, सबके अंदर कितना उमंग है कि हमारे जो वडील है उनका इतना ऑनरिंग हो कि वो और 80 इयर्स खींच ले, ठीक है ना, और 80 इयर्स। क्योंकि सतयुग में तो 150 वर्ष हमारी आयु होगी। पर दिन प्रतिदिन बाबा क्या कहते हैं, हर रोज मुरली में, आप सब मुरली तो सुनते हैं ना, बाबा क्या कहते हैं, जितना मुझे याद करेंगे उतना आपकी आयु बढ़ेगी। तो ऐसे है ना, आप अपना लंबा आयु करना चाहेंगे ना, तो आप दिन प्रतिदिन जितना बाबा को याद करते रहेंगे उतना आपकी आयु एकदम लंबी होती जाएगी। और दूसरा, शरीर अपना काम करे, आत्मा अपना काम करे। पर शरीर को चलाने के लिए बाबा हमेशा कहते हैं कि इसको भी सोच समझ के चलाना है, इसका भी ध्यान रखना है, ये हमारा रथ है, इसमें हमको रहना है, तो इसको भी ठीक तरह से चलाना है। इसके लिए भी बाबा ने हमको कितना अच्छा ज्ञान दिया। तो आप सब कितने भाग्यवान हो। तो मैं ये कहूँगी, ये जो समय है, ये मौका है, कितना यादगार आप सबके लिए, हमारे लिए ये बन गया। क्योंकि हम भी कुछ समय के बाद आपके जहाँ आप है वहाँ हम भी पहुँचेंगे, ठीक है। फिर आप हमारे से आगे होंगे। तो फिर सब एक दो को दुआएं देते रहते हैं, ब्लेसिंग्स देते रहते। वो हम कहूँगी बहुत बहुत थैंक्स जो यहाँ आए हैं, और हमारे कुछ भाई बहनें यहाँ नहीं आए हैं, उनको भी हम याद करके बहुत बहुत बधाई देते। तो आप एक एक को बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। मणिबेन। ओम शांति। मेरा मिडलैंड से बहुत नज़दीक का कनेक्शन है। यहाँ ही हम नज़दीक के टाउन में जन्म लिया था, और मुझे यहाँ से बहुत पालना मिली है। बाबू भाई, जस्सू बहन, खंडू भाई, जस्सू बहन मैं देख रही हूँ यहाँ, कांति भाई, जस्सू बहन अगेन। जहाँ भी जाती एक जस्सू बहन तो होती हैं। हमारे लंदन में भी एक जस्सू बहन है। जब आप सबको इतने सुंदर ड्रेस में देख रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं जब यहाँ 70s में आती थी, मिड 70s में, मुझे याद है कि मुझे तो साड़ी पहनने भी नहीं आती थी और दादी का एक प्रोग्राम था वेस्टर्न सुपरमेयर में, और मुझे हार्डली ज्ञान में 2-3 वीक हुआ होगा। और उन दिनों में तो ख़ास करके हमारे पास कोई कार नहीं होया करती थी। तो खंडू भाई ने कहा हमारे पास आकर आप रहो और आपको साड़ी पहननी है। मैंने कहा मुझे साड़ी पहनने नहीं आती है। तो मुझे याद है कि जस्सू बहन भी बीमार थी, खंडू भाई, तो सुबह 4 बजे उठकर मुझे साड़ी पहनाती है दादी भी यहाँ बहुत आकर रहती थी। हम भी दादी के साथ जहाँ तहाँ जाते थे, कई दिनों तक रहती थी। तो हम अपने आप को भी बहुत सौभाग्यवान समझते हैं
कि यहाँ से मुझे बहुत पालना मिली है। और ख़ास करके हार्बर स्ट्रीट में भी आकर हम कभी रहते थे, कहाँ जाना होता था तो हमारे यहाँ फ्रेंड्स है बहुत सारे। और ख़ास करके जो आज ख़ास संगठन हुआ है उनको देखकर तो बहुत हर्ष हो रहा है। नॉटिंघम, बर्मिंघम, कोवेंट्री, सबको देखकर इतनी खुशी हो रही है। लफब्रो में से भी कहीं आए हैं, तो ब्रैडफोर्ड नॉर्थ से भी आए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत हार्दिक मुबारक। थैंक यू। ओम शांति। यह नगर देख रहे हो, दूर से ही कितना सुंदर प्रतीत होता है। देख, कुछ भिक्षा उक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। और बच्चा गोवर्धन दास, तुम पूरब की ओर जाओ और जो कुछ भी सीधी सामग्री मिले वो शालिग्राम जी को बाल भोग सिद्ध हो और हमारा कल्याण हो। जी गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बहुत मालदार दिखाई पड़ते हैं। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। देख बच्चा, ज्यादा लोभ मत करना। एक बात याद रखो कि लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान। लोभ कभी नहीं कीजिए, यहाँ में नरक निधान। बोलो गुरुजी महाराज की जय। गुरुजी महाराज की जय। चना चना जलेबी 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 हो चना जोर गरम, आहा। चना जोर गरम, बापू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। हो चने बनावे घासी राम, जिनकी झोली में दुकान। चन्ना चुरमुर चुरमुर बोले, बापू खाने को मुंह खोले। हो चना जोर गरम, बापू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। वाह वाह। क्यों माई, भाजी कितने सेर? आलू, प्याज, नेनुआ, मुरई, मिर्चा, साग, सब टके सेर। जलेबियां गर्मा गरम, घी में गरक, चीनी में तरातत, चाशनी में चबाचब, ले भूर का लड्डू। जो खाए सो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई। सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा, टके सेर खाजा। क्यों भाई हलवाई, मिठाइयाँ कितने सेर दे? बाबूजी, लडुआ, गुलाब जामुन, जलेबी, सब टके सेर। सब टके सेर? सचमुच मस्खरी तो नहीं करते? नहीं बाबूजी, इस नगरी की चाल ही यही है। यहाँ सब सामान टके सेर ही बिकता है। अच्छा, तो इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का? चौपट राजा। वाह 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 वाह, बड़ा आनंद है। अंधेर नगरी, चौपट राजा। टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो बाबूजी, कुछ लेना देना हो तो लो दो। बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया था, उसी से 3.5 सेर मिठाई दे दे तो गुरु चेले का भला हो। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। राम भजो राम भजो राम भजो रे, राम भजो राम भजो राम भजो रे। बच्चा गोवर्धन दास, बता क्या लाया? मुझे तो गठरी भरी मालूम पड़ रही है। गुरुजी महाराज, बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई। देखूं बच्चा? वाह 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 वाह, इतनी सारी मिठाइयाँ कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोली। बच्चा,
यह कौन सा नगर है और इसका राजा कौन है? गुरुजी, हमारी सारी जनता को पता है, आपको ना पता? यह है अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। तो बच्चा, ऐसे नगर में रहना उचित नहीं है। 2 पैसे पास होने पर पेट भर जाता है, और नगरियों में दिन भर भिक्षा मांगो तो उपवास रहना पड़ता है। आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा महाराज। अब तो मैं इस नगर में एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूं, पर इतना कह दे रहा हूं कि जब भी कोई संकट पड़े मेरा स्मरण जरूर करना। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। अंधेर नगरी के चौपट राजा पधार रहे हैं। सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। नृत्य शुरू किया जाए। संकाशम त्रिनेत्रम पंचवक्त्रकम गंगाधरम दशभुजम सर्वा आभरण भूषितम नीलग्रीवं शशांकां नागयज्ञोपवीतं व्याघ्रजन्मोदरीयं च वरेण्यं अभयप्रदम्। जम तरि झक तरि ताम किड़दिक तरि किड़दों झण झण कुकुम तरि ताम किड़दिक तरि किड़दों तरित दणत जणुत दिमित तरित ताम दणत ताम जणुत ताम तरित तत दणत तत जणुत किड़दिक तरि किड़दों तरित तत दणत तत जणुत किड़दिक तरि किड़दों ताम। स्मरुनी अंतःकरणी तुझला ठेविला देह चरणी तुझिया मजसी सामर्थ्य द्यावे हे नटराजा। स्मरुनी अंतःकरणी तुझला ठेविला देह चरणी तुझिया मजसी सामर्थ्य द्यावे हे नटराजा। सर्वस्वाचे हवन मांडले मसमती द्यावी जगदीशा।
है महाराज, दुहाई है। मेरा न्याय हो। तुम्हारा न्याय यही होगा, और ऐसे होगा जैसे यम के यहाँ भी नहीं होता। बोलो क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, मेरा न्याय हो। मंत्री, जाओ अभी कल्लू बनिया की दीवार को ले आओ। महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। मंत्री, उसके भाई, लड़के, दोस्त जो भी मिले उसे पकड़ लाओ। अरे महाराज, दीवार ईंट चून की होती है, उसका कोई भाई बेटा नहीं होता। अच्छा, तो जाओ कल्लू बनिया को पकड़ लाओ। कल्लू बनिया को लाया जाए। कल्लू बनिया हाजिर हो। महाराज की जय हो। क्यों रे बनिए, पुदीने की धनिये, इसकी चक्री कैसे मर गई? बोल। महाराज, चक्री नहीं बकरी। हाँ वही यार। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। मंत्री, इस लल्लू को निकालो और कारीगर को पकड़ लाओ। इस लल्लू को ले जाओ और कारीगर को लाओ। कारीगर हाजिर हो। मन बलवान लागे चट्टान, रहे मैदान में आगे। महाराज, मेरी जय हो। क्यों रे कारीगर, तैने दीवार ऐसी क्यों बनाई कि दीवार गिर गई और मकड़ी मर गई? बोल। महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं, उस चूने वाले ने ऐसा बोधा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, इस कारीगर को ले आओ। नहीं, कारीगर को निकालो और चूने वाले को पकड़ लाओ। कारीगर को ले जाओ और चूने वाले को लाओ। चूने वाला हाजिर हो। मेरी राह में फूलों का रास्ता है मेरा सामने। महाराज की जय हो। क्यों बे खैर सुपारी चूने वाले, इसकी ककड़ी कैसे मर गई? बोल। महाराज, हमारा कुछ कसूर नहीं, वो भिस्तिया चूने पानी ढेर दे दिए, इसे की दीवार कमजोर रह गई। अरे मंत्री, इस चुन्नी लाल को निकालो और भिस्ती को पकड़ लाओ। इसे ले जाओ और भिस्ती को लाओ। भिस्ती हाजिर हो। कोई हमें प्यार करे, कोई जान निसार करे, देख के हमको तो कहते हैं लोग भला। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। क्यों बे भिस्ती, गंगा जमुना कश्ती, तैने चूने में इतना पानी क्यों दिया कि दीवार गिर गई और कल्लू बनिया दब गया? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, उस कसाई ने मजाक ही इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। महाराज, मुझे माफ करो महाराज। मंत्री, इस भिस्ती को निकालो और कसाई को पकड़ लाओ। भिस्ती को ले जाओ यार, कसाई को लाओ। कसाई हाजिर हो। महाराज। क्यों रे कसाई, तैने मसक ऐसी क्यों बनाई? दीवार गिराई और बकरी दबाई। बोल। महाराज, गडरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भीड़ मेरे हाथों बेची कि उसकी मशक ही बड़ी बन गई। मंत्री,
इस खबीस के बच्चे को निकालो और जाओ गडरिये को ले आओ। इसे ले जाओ और गडरिये को लाओ। गडरिया हाजिर हो। तू दाढ़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले। महाराज की भय हो। क्यों रे गदड़िए, तैने इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि दीवार गिर गई और बकरी मर गई? बोल। महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई तो उसको देखने मैंने छोटी बड़ी भेड़ों का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कोई कसूर नहीं। मंत्री, इसे निकालो और कोतवाल को अभी पकड़ लाओ। इसे ले जाओ और कोतवाल को लाओ। कोतवाल हाजिर हो। ये कलयुग है, कलयुग। क्या लोग सिर्फ एक ही मतलब के लिए जीते हैं, अपने मतलब के लिए। महाराज की जय हो। महाराज। क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी इतने धूमधाम से क्यों निकाली कि गदड़िये ने गड़बड़ा कर बड़ी भेड़ बेच दी, जिससे बकरी गिर गई और कल्लू बनिया दब गया? मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते गया था। ये नहीं, तुमने इतने धूम से सवारी क्यों निकाली? क्यों निकाली तुमने सवारी धूम से? महाराज वो मैं महाराज कुछ नहीं। मंत्री, इस कोतवाल को अभी फांसी पे चढ़ा दो। दरबार बर्खास्त। सैनिकों, इसे फांसी पे चढ़ा दो। नहीं महाराज, या नहीं महाराज। गुरुजी ने तो हमको यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बुरा है, पर अपना क्या, अपन किसी राजकाज में थोड़ी ना है कि किसी बात का डर हो। रोज मिठाई चबाना और मजे से आनंद उठाना। चल बहुत मिठाई खा के मोटा है, आज पूरी हो गई। बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। हैं? यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब? चलिए फांसी पर चलिए। फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे हैं जो मुझको फांसी? आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते आपको फांसी होगी। मोटे होने से फांसी? ये कहाँ का न्याय है? अरे फकीरों से हंसी नहीं की जाती। बात यह है कि कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हमने इस पे महाराज से अर्ज किया कि किसी मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दें। इस वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। तो क्या और कोई नगर भर में मोटा नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी दे देते हो? इसमें दो बातें हैं। पहली, राजा की न्याय से कोई मोटाता नहीं। दूसरी, अगर मोटा जाए तो दरबार में जाके न जाने क्या बोले, इस वास्ते आपको फांसी होगी। दुहाई हो परमेश्वर की, यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहना मैंने ना माना, उसी का फल मुझे अभी भोगना पड़ रहा है। गुरुजी कहाँ हो? कृपया मेरे प्राण बचाओ। हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है ये। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा हो गई है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है। तूने मेरा कहना नहीं सुना।
कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं। और सुनो, मुझे मेरे शिष्य को एक उपदेश देना है। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, और अगर मेरा कहना नहीं सुने तो समझ लो तुम्हारा भला नहीं होगा। नहीं नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। तब तो गुरुजी हम ही फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम इतना समझाया, नहीं मानता। हम बुढ़े भाई, हमको चढ़ने दे। अरे भाई, यह क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। हम भी नहीं समझ सकते कैसी गड़बड़ है। क्या गोलमाल है? महाराज, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, शिष्य कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। बाबूजी, आप काहे को फांसी चढ़ना चाहते हो? महाराज, इस वक्त ऐसी साइट है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। अरे बाबा जी, तब तो हम भी फांसी चढ़ेंगे। हमको तो हुक्म है, हम ही फांसी चढ़ेंगे। अरे दीवार तो हमारी वजह से गिरी थी, फांसी तो हम चढ़ेंगे। अरे हम चलेंगे। राजा कौन? आप सरकार। तो बैकुंठ जाने का हक किसका? आप सरकार। तो मंत्री चढ़ाओ हमको फांसी। अरे चलिए महाराज। जहां ना धर्म, ना बुद्धि, ना नीति, ना सूजन समाज, तो ऐसी अपूही नसे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। जिस मोल भाजी उस मोल खाजा, उस मोल खाजा हो। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। ओम शांति। बहुत ही सुंदर सबके लिए एंटरटेनमेंट हो गया, और ख़ास तो हमारे जिनों के प्रति ये प्रोग्राम चल रहा है, उन्हों को तो बहुत ही विशेष सम्मान भी है। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ भी है। और देखो आप लोगों के लिए कितना प्यार से सब कुछ तैयार किया है। और सचमुच बात सही है, जब हम लंदन में भी गोल्डन ओल्डीज़ का प्रोग्राम बनाया था, तो वहाँ तो मैं समझती 100 से भी अधिक थे। तो उस समय भी हंसबेन का बहुत ही सुंदर सहयोग रहा था हर प्रकार की तैयारी में। तो जब उन्होंने सुना कि यहाँ भी कार्यक्रम होने जा रहा है, तो उन्होंने बहुत प्यार से सारी तैयारी करके वहाँ से भेजा सामान, एक एक को देती रही। क्यों? क्योंकि आप सभी ने अपना सब कुछ जीवन भर बाबा को ही अर्पण किया है। तो आपका जितना ही सम्मान करें उतना ही कम। बाबू भाई तो बिल्कुल लीडर, और बाबू भाई देखो अभी तक भी कितना बिल्कुल फुर्त अपना इंडिपेंडेंट सब कुछ कर रहा। तो आप सबके लिए न सिर्फ ब्रह्मा बाबा का एग्ज़ाम्पल है, न सिर्फ दादियों का एग्ज़ाम्पल है, परंतु आपके आँखों के सामने अपना भाई का भी एग्ज़ाम्पल है। तो और आगे क्या करना है? और आगे तो श्वासोश्वास बाबा को याद करना है। आज भी बाबा ने बहुत सुंदर हिस्सा बताया कि पुण्य कर्म क्या है। भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा ने समझाया। तो आप सभी ने तो वचन और कर्म से तो बहुत ही सेवाएं की है, परंतु अभी मनसा सेवा, जितना जितना आप मनसा सेवा करते रहेंगे उतना बिल्कुल कल्प के अंत तक हमारे साथ रहेंगे, और फिर कट्ठे कट्ठे ही बाबा के घर जाएंगे।
100 तक कौन पहुंचा है? कोई पहुंचा है? नहीं। 90 तक कौन पहुंचा है? वाह, देखो आप लोगों के लिए विशेष तालियां। और बाकी 80 से पार तो सारा ग्रुप ही है। तो अभी दादी तो 104 तक पहुंची, तो अभी तक तो बहुत मार्जिन है ना। परंतु कल्प की आयु कब तक है वो हमें नहीं मालूम। परंतु संसार की हालतें देख रहे हैं तो उसी से थोड़ा तो ध्यान आता है कि अभी कोई ज़्यादा समय नहीं है। और ये जो खेल सारा देखा ड्रामा का, अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के सिर भाजी टक्के सिर खाजा। जब दादी जी फर्स्ट टाइम लंदन आए थे, फर्स्ट टाइम वेस्ट में आए, उससे पहले 54 में दादी जी जापान और फिलीपींस आदि वो सारा ईस्ट का चक्कर लगाया था, पूरा वर्ष चक्कर लगाया था। परंतु जब 77 में लंदन पहुँचे तो हमसे पूछा कि दूध का बोतल कितने का? तो उस समय शिलिंग्स चलते थे, तो मैंने कहा 1 शिलिंग का। फिर पूछा कि सब्ज़ी कितने में मिलती है? तो वो भी उसी दाम में थी। फिर और भी कुछ पूछा तो मैंने कहा कि वो भी उसी दाम करीब करीब है। तो तभी फर्स्ट टाइम मैंने ये बात उसके मुख से सुनी, चौपट राजा की अंधेर नगरी। क्योंकि भारत में तो दूध खरीदने जाओ, सब्ज़ी खरीदने जाओ, सब अलग अलग दाम होता। काजू खरीदने जाओ तो वो तो और ही अलग होता। परंतु यहाँ पर तो उन दिनों में सब कुछ सेम हो रहा था। फिर तो चेंजेस आते गए हैं, परंतु चौपट राजा का तो और ही हिसाब हम देखते ही जा रहे हैं। तो वो तो चलो एक खेल की बात है, परंतु हर रोज़ का समाचार तो मुझे मालूम नहीं है। कौन है जो आजकल का समाचार सुन रहे हैं इस ग्रुप में से? कोई है किसको समाचार संसार का पता चलता है? आपके बच्चे नहीं बताते हैं आपको? आपको आईपैड पर नहीं नजर आता? नहीं? हाँ, एलेन को तो अच्छी तरह से पता है। बाकी और कोई है जिसको समाचार संसार का मालूम पड़ता? नहीं? बाबू भाई आपको नहीं बताते हैं संसार में क्या चल रहा? थोड़ा थोड़ा तो बताते होंगे। तो बहुत सारा युद्ध की बातें नज़र चल रही है और युद्ध बढ़ती जाती है, पता नहीं कब अंत आएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो कुछ साकार बाबा ने बातें मुरली में सुनाई है वो प्रैक्टिकल अभी वो नज़र आ रही है। आप लोगों ने मुरलियाँ 40 वर्ष से सुनी है। कितने बार? एक चक्कर 5 वर्ष का होता है मुरलियों का। कल्प का चक्कर तो 5000 वर्ष का होता, परंतु एक मुरली का साइकिल होता है 5 वर्ष। क्योंकि 1969 में बाबा ने देह त्याग किया, परंतु मम्मा के जाने के बाद 1965 तब से मुरलियाँ चली, जो वही फिर बाबा ने कहा वही रिवाइज करनी है। उससे आगे बाबा ने कहा कि उस समय तो था बचपन की बातें, तो वो नहीं, परंतु जो और आगे बाबा ने बातें बताई है उसको रिवाइज करते रहे हैं। तो एक तरफ मुरली की बातें आप सामने रखो, दूसरी तरफ समाचार संसार का सामने रखो, दोनों ही बिल्कुल मैच हो रहे हैं। तो उसी हिसाब से ही जैसे ब्रजमोहन भाई साहब ने बताया, बस ऐसे अपनी स्थिति बनी रहे, और न सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए है परंतु जो भी बैठे हैं सब के लिए ऐसे स्थिति तैयार करते रहें जो बिल्कुल अचानक कोई भी बात हो जाए परंतु आत्मा एवर रेडी रहे। एवर रेडी का मतलब उस समय ये बात ना आए कि फ़लानी बात मैं भूल गई, मुझे वो काम करना था, लिस्ट में ये भी बात थी वो भी रह गई। नहीं, जो कुछ बाहर का भी रहा हुआ हिसाब किताब है
उसको भी समेट लेना है। और फिर साथ साथ जो कुछ अंदर का हिसाब किताब रहा हुआ है उसको भी अच्छी तरह से समेट लेना है, ताकि फिर एक बाबा दूसरा न कोई। आप लोगों ने दादी को भी देखा, दादी जानकी को बहुत ही समीपता से देखा। जैसे हमारी जैमिनी बहन और मणि बहन बता रहे थे, दादी का यहाँ आना कितना बारी होता था, गिनती नहीं कर सकते। कोई कोई बेचारे ऐसे देश है जो कहेंगे दादी हमारे पास 2 बार आए, दादी हमारे पास 1 बार आए। यहाँ तो अनगिनत बार आई। एक ही वर्ष में दादी कितनी बारी आई होंगी, और 40 वर्ष तो क्या उसके बाद भी दादी यहाँ जब जब लंदन में आती रही है ज़रूर कहती थी मुझे लेस्टर जाना है। और दादी का ये स्वप्न साकार हुआ। दादी ने कहा हर्बर्ट एवेन्यू तो बहुत छोटा है, तो छोटे से बड़ा बन गया, परंतु वो भी दादी कहती ये बहुत छोटा है, अच्छा स्थान होना चाहिए बाबा के बच्चों के लिए। तो न सिर्फ ये आप लोगों की मेहनत थी और स्वप्न था, दादी का खुद स्वप्न था कि लेस्टर के बाबा के बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर स्थान हो, जहाँ सब आराम से शांति से बैठ कर के स्टडी कर सके। और स्टडी क्या करनी है कि हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी कैसे बन सके। कोई और सारे विश्व में और विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ पर आपको ये डिग्री मिल सकती, जहाँ पर आपको हो कि हाँ हम देवता बन सकते। तो आपकी जितनी ऊंची पढ़ाई है, जितना ऊंचा टीचर है, उतना ही ऊंची आपकी स्थिति। जो आज की स्थिति है उस अनुसार ही भविष्य का पद बिल्कुल जान सकती हैं। जैसे आज भी बाबा ने कहा स्वराज अधिकारी है तो विश्व के राज अधिकारी भी बन सकते। और आप लोगों के लिए तो ये सब बातें बहुत सहज है। क्यों? क्योंकि जीवन भर का जो अनुभव होता वो बहुत काम आता। जो नौजवान है उन्हों को तो अभी बहुत कुछ और आगे सीखना है, और समस्याएं आएंगी, सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, परंतु टाइम लगेगा। परंतु आप लोगों ने जितनी जितनी बातें सीख करके न सिर्फ बाबा के ज्ञान से परंतु अपने लौकिक जीवन से भी बहुत कुछ सीख करके जीवन में परिवर्तन लाना होता, और उस आधार पर जो कुछ शिक्षा प्राप्त की है, जीवन में धारण किया है, उस आधार पर और आप आगे बढ़ते गए हैं। किसी ने मुझे कहा कि आपको कभी संकल्प आता है कि आप फिर से जवान बन जाओ? मैंने कहा नहीं, एक एक सफ़ेद बाल हमने कमाई के हिसाब से किया है। एक एक जो रिंकल है वो भी कमाई की निशानी है। क्योंकि बहुत बहुत जीवन में सीखते हैं, और बाबा के ज्ञान के आधार से तो और भी बहुत जल्दी सीखने को मिला। तो आज आप गिनती करो बाबा के बनने के बाद कितना खजाना हमें मिला है, गिनती से बाहर है। बिल्कुल आप गिनती ही नहीं कर सकेंगे। कर सकते हैं गिनती? बाबा ने जितना समझ दी है, बाबा ने जितनी शक्ति दी है, बाबा ने जितना स्पिरिचुअल बातों की समझानी दी है, भक्ति की कहानियों का सार बताया है, भक्ति की और सब बातों का राज बताया है। विश्व भर में सिर्फ बाबा के बच्चे ही हैं जिन्हों को इतनी समझ की शक्ति अपने में समाई रखी होंगी, और हर प्रकार से गुणों की धारणा भी बाबा ने सिखाई है। तो आज जो बाबा ने कहा दानी बनो, महादानी बनो, पुण्य आत्मा बनो, तो मुझे लगता है कि आप जितना जितना वो बातें याद करेंगे, अपने जीवन को देखेंगे, तो आपको अवश्य याद आएगा कि दान भी किया है,
गुणों का महादान भी किया है और वरदानी मूर्त बन करके अन्य आत्माओं को वरदान भी दिया होगा। तो पुण्य का खाता खूब 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 जमा है। तो अचानक कुछ भी हो जाए, आपके परिवार को आप अभी से ही तैयार करके बता दो कि हम भरपूर होकर के जा रही हैं। जब मुरली दादा की आयु कुछ 85 की थी, जब गए वो तो 93 में गए, परंतु जब करीब 85 की थी, हमारा भाई खास आया था कनाडा से, वो खुद भी डॉक्टर है। तो उसने अपने बाप के साथ बैठ कर के, मैं उस घड़ी साखी होकर के देख रही थी, उसने अपने बाप से पूछा, आपको मन में ये नहीं आता कि ये सब कुछ तबीयत ऐसे हो रही है, ऐसे क्यों हो रहा? तो दादा ने कहा, नहीं, मुझे संकल्प नहीं चल रहा। तो कहता है हरीश भाई, वो कहता है कि आपको कभी मन में अपसेट नहीं होता कि मैं तो इतना सब कुछ पहले करने वाला था, अभी तो मैं इतना डिपेंडेंट हो गया हूँ? नहीं, मुझे कुछ संकल्प नहीं आ रहा। आपको कोई मन में आश है कि ये बात रह गई, मुझे वो बात चाहिए, या कहाँ और जाना है, या किसी और से मिलना है? तो दादा कहता था, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, जो कुछ मेरे मन में था मैंने वो किया, बहुत कुछ देखने को मिला, अभी कुछ नहीं चाहिए, बाबा ने सब कुछ दे दिया। तो भाई मेरा हैरान हुआ। मैं समझती कभी भी उसके पास कोई ऐसे पेशेंट नहीं हुआ होगा जो कहे कि मैंने सब कुछ किया है, सब कुछ देखा है, मैं संतुष्ट हूँ। तो आप सब भी, मुझे लगता है कि यदि आपसे कोई बैठ कर के ये इस प्रकार से प्रश्न पूछे, आपके बच्चे लोग तो कोई ज्ञान में है, बहुत करके नहीं भी है, परंतु वो आपसे इस तरह से बैठ के डायलॉग करे तो आप उनको क्या उत्तर देंगे? आप उनको यही उत्तर देंगे, हम संतुष्ट हैं, सब कुछ देखा, सब कुछ मिला, सब कुछ पाया, और बाकी कुछ नहीं रहा। तो बाकी जीवन और क्या करनी है? बस मनसा सेवा, आपके चेहरे द्वारा, आपके नयनों के द्वारा, और जो कुछ आप बोलते हैं आपके मुख के द्वारा भी, हर एक को ऐसे लगे कि हमें कुछ मिल रहा है। आप लोगों ने दादियों को भी देखा, दादी की तबीयत कैसी भी होती थी, आप सब देखने को आते थे, दादी को मिलने के लिए आते थे। तो उस समय आप दादी की परचानी करते थे या वो आपको खुश करके भेजती थी? हमें हिम्मत नहीं होती थी कि हम दादी को कहें, दादी आपको दर्द है क्या? मालूम भी था कि दर्द है, परंतु दादी के चेहरे से नहीं पता चलता था। और फिर दादी जो मुख से कुछ भी बोलती थी, एक वरदान बन जाता था, बहुत प्राप्ति हो जाती थी। हमारी स्थिति कैसी भी हो, दादी के पास आने से और स्थिति ऊपर जाती थी। तो आपके सामने कितने एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आप भी अपनी स्थिति इतनी ऊंची बना करके रखो जो आपको देख करके, आपकी दृष्टि द्वारा, आपके मुख द्वारा हर एक को कुछ न कुछ प्राप्ति होती रहे। एक बहन बहुत बीमार थी, शीलेंद्रा दादी, आप उसको जानते हैं कहीं, वो मैं समझती लेस्टर भी ज़रूर आई होंगी। दादी तो हर एक को लेस्टर में भेजती ही थी, परंतु लंदन में भी वो कई बार आई, तो आप लोग वहाँ पर भी शायद मिले होंगे। वो थी मनमोहिनी दीदी की लौकिक बहन, और बाबा उसको कहते थे गवर्नर, बॉम्बे का गवर्नर। क्यों? क्योंकि आबू का तो कारोबार जो चलता था बहुत बड़ा था उन दिनों में भी, उस हिसाब अनुसार। और जो सारा बैंकिंग स्ट्रक्चर थी आबू में, वो तो अभी भी आपने देखा छोटा सा ही कुछ चलता। तो सारा बाबा का जो बैंकिंग का कारोबार शीलेंद्रा दादी संभालती थी बॉम्बे में।
तो बाबा उसको तभी बॉम्बे का गवर्नर कहते थे। तो जब उनकी अंतिम 10 वर्ष थी तो बहुत तबीयत बिगड़ी हुई थी, स्पाइन में कैंसर था। आप सोच सकते हैं कि स्पाइन की कोई भी बीमारी आती है तो बहुत दर्द होता, परंतु स्पाइन में कैंसर हो, आप हिसाब लगाओ कितना दर्द होगा। तो दादी गई थी बॉम्बे में खास शीलेंद्र दादी से मिलने। तो शीलेंद्र दादी को कहे कि आप बाबा को, अब ये बाप दादा की पधरामनी उन दिनों में चालू हुई थी, आप दादी को ये ज़रूर बताओ, आप बाबा को बताना कि बहुत दर्द है और बस अभी मैं शरीर छोड़ने चाहती हूँ। तो दादी जब मधुबन पहुँची, बाबा को ये संदेश दिया। बाबा ने क्या बोला, मैं भी बच्ची को सकाश दूंगा, परंतु आप बच्ची को ये ज़रूर समझाओ कि जितनी लंबी आयु हो, दर्द हो न हो हर्जा नहीं है, जितनी लंबी आयु हो उतनी फिर भी बाबा की याद की कमाई होती ही रहेंगी। अभी शरीर छोड़ के जाके छोटे बच्चे बनेंगे, कमाई का तो रास्ता बंद हो गया। बच्चे को तो कुछ मालूम ही नहीं शिव बाबा कौन, कैसे याद करना होता। तो आप बच्ची को ये हमारा संदेश देना। तो मैं क्यों ये कहानी बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी शायद किसी को ये संकल्प आ सकता कि अभी तो बहुत हो गया, अभी तो शरीर छूटे तो अच्छा है। किसी को ये संकल्प तो नहीं आता शायद आता भी होगा परंतु नहीं, आप ये संकल्प आने नहीं देना, क्योंकि हर श्वास अभी तक भी बहुत ही वैल्यूबल है और हर श्वास में बाबा की याद रहे, उससे और भी बाबा आपके नज़दीक रहेगा और फिर आपको देख करके और भी आत्माएं बाबा के नज़दीक आ सकेंगी। अब तक तो जहाँ तक मुझे मालूम है, हर एक के घर वाले कोई तो ज्ञान में है, कोई ना भी है, परंतु जो ना भी है उनको अवश्य इतना तक तो रिगार्ड है कि जो हमारे बड़े हैं घर के, वो अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। सबको ये रिस्पेक्ट तो है ना, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ भक्ति की बातें भी देखी होंगी, उन्होंने बहुत कुछ औरों के संस्कार भी देखे होंगे। क्योंकि कहीं सोचते कि यदि कोई बुजुर्ग बनता, जीवन के अनुभव से सीख करके उनके संस्कारों में कुछ परिवर्तन होता, ऐसे है नहीं। लौकिक हिसाब से जो मैंने देखा है, जो संस्कार पहले थे, मानो किसी का लोभ का संस्कार था, किसी का मोह का संस्कार था, किसी का क्रोध का संस्कार था, जितना वो बुजुर्ग होते जाते हैं वो संस्कार और ही पक्का होता जाता। क्यों? क्योंकि वही संस्कार यूज़ होता रहता है, चाहे क्रोध का है चाहे मोह का है। उनको चेंज करने की वो शक्ति नहीं होती, वो समझ नहीं होती कि कैसे संस्कारों का परिवर्तन हो। तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स के भी पेरेंट्स को देखा होगा, ग्रैंड पेरेंट्स को भी देखा होगा। तो आप लोगों को देख कर के उनको ज़रूर ये पता होगा कि इन्हों में किस तरह से परिवर्तन आता गया है, कैसे पुराने जो संस्कार है वो सब मिटते गए हैं और अभी बहुत मिठास आ गई है। बाबा की बहुत अच्छी पॉइंट थी उस दिन, याद से आत्मा में मिठास आती है। जैसे बाबा के लिए हम कहती है बाबा मीठा बाबा, ऐसे बाबा तो सदा ही बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे, परंतु रियलिटी बाबा की याद से संस्कार मीठे बनते जाते हैं। जो भी कड़वाइश थी, कोई भी कारण से, कोई दुख था, कोई ऐसे बातें रही जीवन में, किसी ने धोखा दिया था, तो उस कारण से भी संस्कार कुछ कठोर भी हो जाते हैं और कुछ कठिन भी हो जाते हैं। और फिर उन संस्कारों को मिटाने के लिए
एक तो पहले जैसे बाबा ने लास्ट वीक कहा रियलाइजेशन शक्ति, और दूसरा फिर बाबा के साथ योग। योग अग्नि से, ज्वाला रूपी योग से संस्कारों का परिवर्तन। अभी कोई आपको ये नहीं कहेगा ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। किसको कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो भी आपका कौन सा धंधा है? बाबा को याद करना, और जो भी आपके सामने आए उन्हों के साथ ज्ञान की चिट चैट करना, ताकि फिर उन्हों को भी कुछ प्राप्ति हो। तो मुझे लगता है कि वानप्रस्थ अवस्था एक भाग्यवान अवस्था है। पहले समय लोगों की आयु इतनी लंबी नहीं होती थी। मुझे याद है 60s में कहते थे भारत में एवरेज लाइफ स्पैन 50s के अंदर थी। विदेश में तब तक 60s में थी, अभी तो 80s 90s में चलती है, उससे भी ज़्यादा। परंतु ये जो जीवन लंबी मिलती है वो भी एक भाग्य की बात, परंतु अपनी उन्नति के लिए और अन्य आत्माओं को प्रेरणा देने के लिए ये हमारी जीवन है। यदि आप ये बात याद रखेंगे कि हमको ये एक्स्ट्रा टाइम जो मिला है, हर एक को एक्स्ट्रा टाइम कहेंगे। जो जीवन की आयु नहीं तो हिसाब लगाते हैं 70 वर्ष, परंतु ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है इन दो बातों के लिए, अपनी और अधिक कमाई और साथ साथ अन्य आत्माओं को प्रेरणा दे करके उन्हों के बाबा के समीप लाना। तो आप एक एक दिन का बहुत अच्छी तरह से उसको सफल करते चलना, क्योंकि एक एक दिन का बड़ा महत्व होता है संगम युग का। बाबा ने लास्ट टाइम कहा था, जब कोई भी बात में हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, वो 2 मिनट का हिसाब नहीं है। संगम युग का तो वो 1 वर्ष का हिसाब बन गया। तो उसका जो पॉजिटिव है वो भी आप सोचो। जो एक एक दिन हमारा बीतता जा रहा, हमारी बहुत कमाई का दिन बनता जा रहा, और संगम युग का एक एक घड़ी बहुत ही कीमती है, और आप उसका अच्छी तरह से फ़ायदा उठा सकते। और कहेंगे हमको ये काम है, वो काम है, वो काम है, आपके लिए ये बहाना नहीं है। कुछ काम नहीं है सिवाय बाबा को याद करना। तो आप एक एक घड़ी को न सिर्फ बाबा की याद में बिताना, परंतु खुशी खुशी से बिताना। यदि जीवन में खुशी होती है, वो भी आयु को लंबी कर देती। जो सोचता है कि मेरी जीवन बेकार है, दुख हो रहा है, तो उससे भी आयु की शक्ति कम होती जाती। परंतु जो खुशी खुशी से जीवन बिताता, एक एक दिन की कीमत होती, वैल्यू होती, और उसका मज़ा लेता, तो वो फिर अन्य आत्माओं को भी प्रेरणा देता, परंतु अपने जीवन में वो शक्ति बढ़ती जाती। तो जो बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, आज वो बैटरी कितनी चार्ज है। आप इतना यहाँ पहुँचे हो, न सिर्फ लेस्टर के, परंतु जैसे बहन ने पहले बताया कितने कितने स्थानों से आए हुए हैं। जवान भी कभी सोचते कि मौसम ठीक नहीं है, हम घर बैठ जाएं, और आप लोग फिर भी यहाँ पहुँच गए। तो इतना आप एंजॉय करते रहना एक एक संगम युग की घड़ियाँ। और बाबा ने आप लोगों के लिए हर प्रकार का साधन बहुत अच्छा बना के रखा है कलयुग के अंत में। बेशक अंधेर नगरी है, कलयुग है, परंतु अंधेर नगरी होते भी साइंस के साधन इतने अच्छे अच्छे बने हुए हैं, जिसका आप लोगों को अच्छा फ़ायदा हो सकता। मुझे याद आता, मैं एक बारी लंदन में डाइनिंग रूम में आई, तो मैं जहाँ सर्वरी है मैं वहाँ खड़ी थी, और मुझे आवाज़ आ रहा है दादी रतन मोहिनी का। मैंने सोचा ये क्या कॉन्फ्रेंस हॉल में कुछ चल रहा, वो उसका आवाज़ आ रहा, कहाँ से ये आवाज़ आ रहा है। फिर मैं देखूँ कि लास्ट बिल्कुल जहाँ दरवाज़ा है जो रिसेप्शन में जाने का,
वहाँ पर माता जी बैठी थी, मणि बहन की माता जी, और वो आईपैड पर वो मधुबन की मुरली सुन रही थी। तो मैंने सोचा, और अकेली थी, मीन्स खुद ही उसने चलाया था, खुद ही उसने बना करके रखा था। तो मैं सोचा कि बाबा की मदद, समय की बलहारी, जो बुज़ुर्ग लोग भी ऐसे डिवाइसेस अपने पास रख करके आराम से वो मुरली सुन रही थी। दादी रतन मोहिनी ही वो मुरली सुना रही थी उस समय। तो आप लोगों के पास भी आपके ऐसे चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे जो आपके लिए सब सेटिंग करके देके जाते होंगे, और आप लोग जल्दी में सीख करके फिर उसका फ़ायदा उठाओ। वैसे तो फिज़िकल हिसाब से तो मधुबन पहुंचना कठिन है, परंतु मधुबन आपके पास आ जाता तो आपको वो भी कष्ट की ज़रूरत नहीं। आपके पास मधुबन आ जाए, आप उसका फ़ायदा उठाओ, और जितना आप लोगों के पास फिर समाचार रहेगा, जो और लोग बिज़ी वाले हैं उन्हों के पास इतना समाचार नहीं होगा जितना आपके पास। तो हर बात में बहुत फ़ायदा होता। तो आप ऐसे अपना सोचना, जो जो दिन बीते, क्या मुझे प्राप्ति हुई, क्या मुझे फ़ायदा हुआ, आज क्या सीखने को मिला। एक बार लेबनान से, आजकल तो लेबनान में बहुत युद्ध चल रही है, परंतु उन दिनों में कुछ शांति थी। लेबनान से एक डॉक्टर आया था, वो रिट्रीट करने आया था। ज्ञान वहाँ थोड़ा सुना था, परंतु रिट्रीट में खास आया था। तो दादी तो हर वीक ऑक्सफोर्ड जाती ही थी क्लास कराने। तो क्लास के बाद हमसे मिला, पूछा दादी की आयु क्या है। दादी की आयु उस समय भी 90s में थी। तो कहा कि मैं लंदन में आकर के एक दिन दादी के साथ बिताने चाहता हूँ कि दादी की दिनचर्या किस तरह से होती, क्योंकि दादी तो वहाँ एक दिन के लिए ही आई थी, फिर जा रही थी वापस लंदन। तो मैंने दादी से पूछा, मैंने उसको बोला मुझे पूछना होगा। दादी से पूछा तो दादी ने कहा हाँ भले, भावना वाला लग रहा है, उसको बुला लो। तो उसने एक दिन दादी की दिनचर्या देखी, और आप समझ सकती हैं, क्लास कराना, सवेरे बादाम देना सबको, फिर लोगों से मिलना, फुल टाइम टेबल होता था उन दिनों में। तो फिर दूसरे दिन वो जाने वाला था, तो दादी और मेरे साथ फिर बैठा। तो कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, परंतु मेरी विशेष सब्जेक्ट है, वो है एजिंग की सब्जेक्ट। उसके पास क्लिनिक थी बेरूत में, एजिंग क्लिनिक, या एजिंग को प्रिवेंट करने की क्लिनिक। तो उसने कहा कि मैंने देखा है कि एक तो दादी हमेशा पॉजिटिव सोचती है, किसी भी बात में मैंने दादी का कुछ नेगेटिव नहीं सुना है, हर बात पॉजिटिव ही दादी सुना रही है। दूसरा, दादी को सीखने की भावना बहुत है। दादी को जब मैं देखता हूँ कि थोड़ा मिनट फ्री है तो कुछ न कुछ हाथ में पढ़ने का होता, और वो पढ़ रही होती। और तीसरी बात, दादी अपने समय को, एक एक घड़ी को सफल करती है। तो दादी जो इतनी जवान है और इतना सब कुछ एक दिन में भी कर रही है, ये 3 बातों के कारण। हर बात में पॉजिटिव, सेकंड हर बात में सीखने की भावना, और तीसरा समय को सफल करना। शायद 94 की आयु होंगी दादी की, क्योंकि फिर बाद में तो दादी का गिरना और फिर चेंज हो गया बहुत कुछ दादी के टाइम टेबल में। परंतु ये 3 बातें कहता है कि यदि आपको अपने को जवान रखना है तो ये 3 बातें हर एक को सिखानी होती, तभी फिर वो अपने बुद्धि से भी अच्छी तरह से काम ले सकते, और वो जवानी के अंदर में जो पावर होती, वो पावर से कदम कदम आगे बढ़ा सकते। तो जो अभी तक 80 नहीं है, ये बातें उन्हों के काम की भी है, चाहे वो आप 20 हो, 30 हो, 40 हो, परंतु ये 3 बातें याद रखेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ भी रहेंगे जीवन, और बहुत सहज जीवन भी बीतती जाएंगी। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो।
और जिन्होंने इस प्रोग्राम की तैयारी की है, बाबू भाई, भूपेन भाई, दीपिका बहन, सुकंती बहन, इंदू बहन और उनके सब साथी। आप सोचो कि ऐसे ड्रामा कोई एक या दो लोग नहीं कर सकते, कितनों ने उंगली दी होंगी, साथ में दिया होगा करने के लिए। ब्रह्मा भोजन नीचे मैंने देखा जो बन रहा, वो भी कोई एक दो की बात नहीं है, सभी के सहयोग से बन रहा। तो हर बात में, जैसे आज बाबा ने कहा कि जहाँ पुण्य कर्म की भावना है वहाँ हर एक का अच्छी तरह से सहयोग मिल जाता। तो सब कुछ सहयोग से चल रहा है और आगे तो चलता रहेगा, परंतु अभी तैयारी करनी है महारास की। ऐसे संस्कारों का मिलन स्वरूप हो जो सदा ही रास चलती रहे। ओम शांति। रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी, लावी लावी। रंगी परोड़ आवी, खुशियों संगे लावी, हर खाए हयू हाय हाय। रंगी परोड़ आवी, खुशियों संगे लावी, हर खाए हयू हाय 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 हाय। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा। मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए।